कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी का गठन करेंगे। हालांकि पार्टी का क्या नाम होगा ये आने वाले वक्त में मालूम चलेगा, ऐसा कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ किया कि नई पार्टी वो Opposition leaders are saying BSF will be deployed at strategic locations including the Golden Temple complex, the Darbar Sahib or the Durgana Temple. People will be facing difficulties. I think this, I have not heard this. If this is being said, it is absolutely wrong. My information and my understanding of the situation is that it is being Punjab Police will look after everything. If they require assistance, they will ask for the BSF assistance. BSF is not taking over anything in the state. The state will be run by the state government. And this is wrong. This is just an issue being made for the sake of trying to get some brownie points, that's all. Captain sir, 5 drop-down ministers. कप्तान साहब मेरे मुझे सीएम ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਹਟਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ capable ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ 9 ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਦੇ। If any home minister says that there is nothing happening in Punjab, he is a totally incapable home minister. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਨੀਲਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि इशू नहीं ना कोल ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 16 ਸਾਲ ਦੇ a person is coming to this country ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Don't ask me these foolish questions. Please sit down. Captain sir, I have 2 questions. Captain sir, this I have 2 questions. 5 drop-down ministers met Rahul Gandhi. 4 out of them met Rahul Gandhi last night, and now Rahul is having back-to-back meetings since you announced to launch a new political party. How do you see that? Is there any Congress leader still in touch with you? Do you think I'm sitting here by myself? Obviously, we have got very many people with us. When the time comes, our party has announced, we will give you this. I can promise you one thing. We will fight all 117 seats. That I can promise you. Whether we do adjustment seats or whether we fight on our own, those are things that time will tell. But yes, we are going to fight and there will be plenty of congressmen coming here. We are waiting for the opportune moment. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 4 साल तो क्यों नहीं बोल? और अब जरा बात कर लेते हैं ड्रग्स कांड की। डांस में नाचते हुए नजर आया है वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है? जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल मामले में कई किरदारों का चक्रव्यूह है। सबसे बढ़कर एक किरदार है
लेकिन आज नवाब मलिक और एक और किरदार लेकर सामने आए और यह आरोप लगा कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का ड्रग पेडलर से रिश्ता है और क्रूज पर उस रात वानखेड़े का एक दाढ़ी वाला दोस्त मौजूद था, जिसकी जांच होनी चाहिए। जो जांच के लिए लोग आए, क्रूज की पार्टी फैशन टीवी ने आयोजित किया था। बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है। रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरीके से नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर हमलावर हैं। आज सुबह सुबह उन्होंने समीर वानखेड़े का निकाहनामा ट्वीट किया और आरोप लगाया कि वानखेड़े ने अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार का हक मारा है। समीर वानखेड़े के लिए दूसरी मुसीबत यह है कि एनसीबी की विजिलेंस टीम आज से तहकीकात शुरू कर रही है। ड्रग्स केस के साथ साथ उन पर लगे आरोपों की भी जांच की जाएगी। क्या सर एनी कमेंट you अरे what questions you are asking me? समीर वानखेड़े का सामना सख्त सवालों से हो रहा है। दूसरों के आरोपों का हिसाब किताब करने वाला अब खुद सवालों के दलदल में फंसा है। आरोप भी मामूली नहीं, एक से बढ़कर एक संगीन आरोप। लेकिन फिलहाल तेज तर्रार अफसर रही वानखेड़े के पास जवाब के नाम पर चुप्पी और बचकर निकल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। What do you expect from me, my dear? Nothing. Thank you very much. सर इंक्वायरी के ऊपर क्या कहेंगे सर? It's good. It's really good. समीर वानखेड़े दिल्ली से मुंबई लौट आए हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे एनसीबी की विजिलेंस टीम का रुख भी इसी मुंबई की तरफ है। आज एनसीबी का 5 सदस्यों वाला सतर्कता दल वानखेड़े पर लगे वसूली रैकेट और जाति सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े के आरोपों की तहकीकात के लिए मुंबई में होगी। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह जांच दल की अगुवाई कर रहे हैं। टीम आ रही है। एनसीबी की टीम यहां समीर वानखेड़े से आरोपों को लेकर पूछताछ करेगी। आर्यन ड्रग्स केस के स्वतंत्र गवाह और समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ की डील की कोशिश का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैल को भी
दोपहर 12 बजे आने का समन भेजा गया है। लेकिन वानखेड़े का असली सामना तो उन बाउंसरों से है जो नवाब मलिक की तरफ से उछाले जा रहे हैं। वानखेड़े पर आरोपों की बौछार करने वाले नवाब मलिक ने आज की सुबह की शुरुआत भी एक नए आरोप से की। उन्होंने एक तस्वीर और एक निकाहनामा ट्वीट किया और ये भी बताया कि वो ये सब किसी धार्मिक वजह से नहीं कर रहे हैं। नवाब मलिक कह रहे हैं, खुलासा वानखेड़े के धर्म को लेकर नहीं, मेरा जोर जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े पर है। फर्जीवाड़े से वानखेड़े ने IRS की नौकरी हासिल की, अनुसूचित जाति के एक योग्य व्यक्ति का हक छीना। समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे IRS का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। जो भी आरोप किए हैं, जो पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया, तो ये रोज उठ के एक फर्जी कोई सर्टिफिकेट पेश करते हैं जिसका आके हम खंडन करके हम ओरिजिनल बता देते हैं। तो उधर ही वो पता चल जाता है कि कौन एक्चुअली में फर्जीवाड़ा कर रहा है और कौन एक्चुअली में झूठे झूठे आरोप लगा के उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली रहा सवाल एक्सटॉर्शन का, तो एक्सटॉर्शन के दाग इसके पहले क्यों नहीं लगे समीर वानखेड़े पे? क्यों पहले उनको मेडल मिलते रहे, क्यों? और अभी क्यों एक्सटॉर्शन के केस में उनको फंसाया जा रहा है? ऑडियंस बुद्धू नहीं है, पब्लिक बुद्धू नहीं है, पब्लिक बहुत होशियार है, पब्लिक सब समझती है क्या चल रहा है। आर्यन ड्रग्स केस में एक तरफ आरोपियों की जमानत के लिए जद्दोजहद चल रही है, तो दूसरी तरफ इस पर हो रही राजनीति वाली पिच पर नवाब मलिक अलग तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुंबई में अरविंद ओझा, विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। नवाब मलिक के निशाने पर सीधे सीधे समीर वानखेड़े हैं। इस केस में और भी कई किरदार हैं, सबकी निगाहें आर्यन खान पर भी हैं। और आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज फैसला है। शाहरुख खान ने आर्यन की बेल सुनिश्चित करने के लिए वकीलों की पूरी सेना लगा दी है। आर्यन खान एक सुपरस्टार का बेटा, अनन्या पांडे एक फिल्म स्टार की बेटी, नवाब मलिक एक कद्दावर मंत्री, समीर वानखेड़े एक हाई प्रोफाइल अफसर, और इन तमाम चेहरों के चक्रव्यूह में फंसा ड्रग्स का एक सनसनीखेज केस। जी हां, बीच समंदर क्रूज पर 3 अक्टूबर की रात की वो हाई प्रोफाइल पार्टी अब दिल्ली से मुंबई तक बड़े बवंडर की वजह बन गई है। उस पार्टी पर अब सियासत के ज्वार भाटे उठ रहे हैं, तो बॉलीवुड का सामना एक नई किस्म की सुनामी से है और इन सब के बीच सवालों का समंदर लहरा रहा है। क्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल पाएगी? क्या हाईकोर्ट में शाहरुख के वकीलों की सेना बेल दिलाने में कामयाब होगी? क्या आर्यन खान पर आरोपों का शिकंजा कसने वाले समीर वानखेड़े खुद बेदाग निकल पाएंगे? क्या है समीर वानखेड़े पर हो रही आरोपों की बौछार की सच्चाई? क्या समीर वानखेड़े ने आर्यन केस में उगाही करने की कोशिश की? नवाब मलिक के आरोपों में दम है या वानखेड़े को निशाना बनाना ही मकसद है? इस हाई प्रोफाइल में हर दिन के साथ नए चेहरे, नए किरदार शामिल हो रहे हैं और किरदारों के इस लिस्ट में नवाब मलिक ने एक नए कैरेक्टर की एंट्री करा दी, दाढ़ी वाले किरदार की। मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। नवाब मलिक का आरोप है कि उस रात उस पार्टी में दाढ़ी वाला एक शख्स मौजूद था जो कि समीर वानखेड़े का दोस्त है और ड्रग्स के धंधे में है।
मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया, ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। इस हाई प्रोफाइल में हर दिन के साथ नए चेहरे, नए किरदार शामिल हो रहे हैं। वानखेड़े पर नवाब मलिक के हमलों के बीच वानखेड़े का पूरा परिवार बचाव में आ खड़ा हुआ है, तो अपने खुलासे से इस केस की नींव हिला देने वाले गवाह प्रभाकर सैल पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। तो प्रभाकर ने जिस गवाह किरण गोसावी पर आरोप लगाए हैं, उसकी भी तलाश हो रही है। तो समीर वानखेड़े का सच तलाशने एनसीबी की ही एक टीम मुंबई में होगी। यानी कि ये केस और कितना गहरा है, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से नए नए किरदार मुंबई ड्रग्स मामले में सामने आते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सस्पेंस भी गहरा गया है। बेहद हाई प्रोफाइल मामला जिसमें कई किरदारों का चक्रव्यूह है। समीर वानखेड़े पर रोज नए सिरे से आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं। कभी उनका बर्थ सर्टिफिकेट निकाल देते हैं, कभी उनके निकाहनामा और कभी उनकी शादी की तस्वीर। लेकिन आज नवाब मलिक एक और किरदार लेकर सामने आए और ये आरोप लगाया कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का ड्रग पेडलर से रिश्ता है और क्रूज पर उस रात वानखेड़े का एक दाढ़ी वाला दोस्त मौजूद था, जिसकी जांच होनी चाहिए। और 12 बजे जरूर देखिएगा समीर वानखेड़े की बीवी से खास बातचीत। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।